آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کو کسی سے عشق ہو جائے، اگر آپ کی کسی میں انوالومنٹ ہو جائے اور وہ بندہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے بھول سکتے ہیں، یا جو اس کی تھاٹس ہیں، جو اس کی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کو اس کو بھلانے وہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے عشق کو آپ بھلا سکتے ہیں اور اسے آپ اپنے لیے تڑپا سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بھلانا، کنٹرول کرنا اور پھر تڑپانا، یہ 3 سٹیجز میں پاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی میں وضاحت آپ سے آگے کرتا ہوں۔ دیکھیں، زندگی کے اندر انسان کو پیار ایک قدرتی جذبہ ہے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، کسی اسپیشل کسی پرسن سے، کسی اپنے بوائے فرینڈ سے، گرل فرینڈ سے، ایک سچا پیار ہو جانا کسی سے، ایک اس سے چاہت ہو جانا ایک قدرتی جذبہ ہے۔ اب جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی انوالومنٹ اس شخص کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، ماں باپ کا ہے، بہن بھائی کا ہے، گرل فرینڈ کا ہے، بوائے فرینڈ کا ہے۔ اب آپ کی اس اسپیشل پرسن سے جو ہے وہ اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص آپ کو چھوڑ دیتا ہے یا وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کے اوپر ایک مجنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک پاگل پونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ روتا رہتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس ریلیشن شپ کو دوبارہ سے واپس لے آئے اور وہ جو شخص اس سے روٹھ گیا ہے وہ واپس آ جائے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات جو ہے، اس پروسیس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے اور آپ کیا کام نہیں کریں گے تو وہ شخص آپ سے دوبارہ سے جڑ جائے گا، دوبارہ سے آپ کا ریلیشن شپ دوبارہ سے بن جائے گا۔ یہ بھی لا آف اٹریکشن سیریز کا پارٹ ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت انسان، کیونکہ ہم اس وقت سوچ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پوری باڈی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ ہماری جو تھاٹس ہیں یہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ان تھاٹس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ کی انوالومنٹ کی وجہ کیا ہوتی ہے، جب آپ ایک بندے کے ساتھ چلتے ہیں، وقت سپینڈ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنا اس کو وقت بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں اور جان بھی دیتے ہیں، تینوں چیزیں آپ اس کو دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، ان سم کیسز آپ اس پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ خرچتے بھی ہیں، اور اپنا جان، مال اور وقت، جان سے مراد کہ آپ اپنا اس کو اپنا جو ہے قیمتی وقت اور پلس اپنی ایفرٹس، اپنے ایکشنز، وہ سارے انوالو ہوتے ہیں آپ کی ایک ایفرٹس میں، اس پیار کو، ایک پہیے کو پیار کے چلانے میں۔ تو جب آپ کی ایفرٹس، یہ ٹائم اور یہ سب کچھ لگا ہوتا ہے تو وہ شخص آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس سے سارا دن فون پہ باتیں کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کو کہیں لے کے جا رہے ہیں، اس کو کہیں سے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ جو شخص ہے وہ آپ کا ٹائم، وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے، وہ شخص آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور آپ یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے بغیر رہیں گے۔ اور آپ کے جو خیالات ہیں، آپ اس سے ایک عمارت کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ اس سے فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ آپس میں کمٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، شادی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی تھاٹس کے ذریعے آپ ایک بلڈنگ کا بہت بڑا سٹرکچر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک مضبوط بلڈنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک یقین، اور یہ پختہ یقین، اور اس کو ہونے کا آپ کے اندر پورا یقین آ جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ پھر ٹوٹتا ہے، جس وقت وہ خیالات اور وہ خواب جو ہے وہ چورا چور ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوتی ہے کہ وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ اس کا کپڑے پہننے کو دل کرتا ہے، نہ لوگوں کا اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، اور اس کی زندگی ایک ویران ہو جاتی ہے اپنے اندر۔
सब कुछ होते हुए भी, चाहे उसके पास माल हो, पैसा हो, दौलत हो, या उसके पास कुछ ना भी हो, तो उसकी जो है कैफियत वो बहुत अजीब हो जाती है कि वो उसको उस शख्स के सिवा बाकी सब चीजें बेमानी नजर आने लग जाती है। ना उसके लिए माल की हैसियत रह जाती है, ना उसके लिए अपने रिलेशनशिप्स की हैसियत रह जाती है, ना उसके लिए अपने कारोबार की हैसियत रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी परेशानी का सबब वो एक शख्स बन जाता है। तो अब इसके आते हैं सोल्यूशन की तरफ और उस शख्स को वापस लाने की तरफ। ये सारी सीरीज आपस में कनेक्टेड है। अब बात यह है, सबसे पहली चीज तो यह है कि वो जो शख्स जो परेशान है उसको सबसे पहले, अब वो परेशान है, उसने जाहिर है बहुत कोशिश की होगी उस बंदे से मिलने की, उससे कम्युनिकेट करने की, उससे बात करने की। उसने उसको कहा होगा कि सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, अब वो परेशान है कि मैंने किया भी कुछ नहीं, या कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, मैंने किया भी कुछ नहीं और ये शख्स नहीं मान रहा, ये मूव फॉरवर्ड कर गया। या वो जो शख्स था वो पहले ही धोखेबाज था, वो पहले ही चीटर था। He was just using you. He or she was just using you. तो अब सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपनी थॉट्स को आप कंट्रोल करेंगे जो आपको परेशान कर रही हैं। देखें, आपको जो चीज परेशान कर रही है वो आपकी रैंडम थॉट्स हैं, याद रखिए। जो आपको ख्यालात आ रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपको ख्याल आ रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपकी परेशानी का बायस बन रहे हैं, वो आपकी सारी चीजों को बेतरतीबी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप हर वक्त ये सोच रहे हैं कि वो क्या कर रही होगी, वो किसी से बात कर रही होगी, वो मुझसे फोन नहीं कर रही, वो मुझे फोन नहीं कर रहा, वो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होगा, मैं बड़ा उदास हूं, मैं बड़ी उदास हूं। तो ये चीजें आपकी ख्यालात हैं। सबसे पहला स्टेप है इनको ब्लॉक करना। अगर आपको वो शख्स वापस चाहिए, यू वांट हिम और हर बैक इन योर लाइफ, तो सबसे पहले आपने अपनी थॉट्स को ब्लॉक करना है। लोग कहते हैं ओ भूल जाओ यार, उसको भूल जाओ, क्या हो गया तुम्हें, बड़े आशिक बने फिरते हो। ये कहना बड़ा आसान होता है कि आशिक बने फिरते हो, भूल जाओ। मोटिवेशनल बातें करनी बड़ी अच्छी लगती है कि देखो यार जिंदगी में और भी लोग हैं, ये भी है, वो भी है, लोगों के माँ बाप भी हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन जिस पे गुजर रही होती है उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। बातें वो सब सच कर रहे होते हैं कि भाई माँ बाप मर जाते हैं, वापस नहीं आते। लेकिन वो शख्स बेबस है जिसके ऊपर ये गुजर रही है, उसका अब दिन रात नहीं गुजर रहा। सबसे पहले आपने अपनी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, उनको बंद करना है। ठीक है, अब उनको बंद करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, रिजेक्शन का एहसास भी आपकी एक थॉट है कि उसने मुझे छोड़ दिया तो आई फील रिजेक्टेड, यानी वो मुझसे ऊपर हो गया और मैं नीचे हो गया, यानी उसमें कोई खासियत थी, उसने मुझे छोड़ दिया और आई फील रिजेक्टेड। सबसे पहले अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उनको रोक देना है, उनको ब्लॉक कर देना है। उनको ब्लॉक कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। मैं फर्स्ट स्टेप, अब आपने उस बंदे को वापस बुलाना है तो बड़े पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, रोएंगे, खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे, छुरी के साथ बाजू पे कट लगा लगा के उसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो दूर क्यों चला जाएगा आपसे। अच्छा, आपने सबसे पहले अपनी थॉट्स को आपने ब्लॉक करना है कि आपको उसका ख्याल बिल्कुल ना आए। ख्याल से मुराद परेशान कुन ख्यालात ना आए। ठीक है जी, उसका तरीका का स्टेप नंबर 1 वो ये है कि आपने अकेले कमरे में बैठ जाना है और सुबह और शाम, फजर से पहले का टाइम या इशा के बाद का टाइम, जिस टाइम, कोई भी टाइम जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ये आप 2 टाइम करेंगे। बिल्कुल खामोशी हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई डर ना हो कि अभी कोई दरवाजा नॉक कर देगा या बाहर शोर गुल की आवाजें ना हो। आपने बैठ जाना है और आपने किसी भी जगह बैठ जाए, सोफे पे बैठ जाए, योगा पोजीशन में जमीन पे बैठ जाए तो सबसे बेहतर है। अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, रिलैक्स छोड़ देना, बिल्कुल ढीला छोड़ देना। आंखें आपने बंद कर लेनी है और आपने नाक से सांस लेनी है। इसको हम कहते हैं हब से दम करना, उर्दू में कहते हैं हब से दम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने नाक से सांस अंदर खींचनी है और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता खींचनी है, एकदम ऐसे नहीं खींचनी, बिल्कुल स्लो, आहिस्ता आहिस्ता नाक से सांस खींचनी है और उसको रोक लेना है। स्टॉप इट, होल्ड इट, होल्ड योर ब्रेथ, फिर उसको रोक लेना। जितनी देर आप उसको आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने नाक से ही सांस बाहर निकालना है, मुंह नहीं खोलेंगे आप। योर आईज आर क्लोज्ड,
और आपने अपने दिमाग को कहना है कि मैंने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया, अब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आएगा। आई एम ब्लैंक एंड यू आर ब्लैंक। ये एक्सरसाइज आपने डेली करनी है आधे घंटे तक, सांस वाली, ठीक है जी। और 1 से 2 से 3 दिन आपको तंगी होगी, उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल खाली रहेगा। जिस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे बिल्कुल खाली रहेगा। और तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते की इस प्रैक्टिस के बाद आप मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स के बाद आपका माइंड फुल कंट्रोल में आ जाएगा, पूरे आपके कंट्रोल में आ जाएगा कि आपको जो थॉट्स तंग कर रही थी वो आनी आपको 50 to 60, 70% वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप, क्योंकि हमने 100% कंट्रोल करनी है अपनी थॉट्स। सेकंड स्टेप, अब जब आप ये मेडिटेशन जब आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर लेंगे आधा घंटा, उसके बाद आपने अपने आंखें बंद ही रखनी है और वहां बैठे बैठे अपनी सांस को आप नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है। बड़ी स्लो ले रहे थे, होल्ड कर रहे थे, नाक से निकाल रहे थे, ब्रीद नाक से ही करेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। आधे घंटे के बाद आप अपनी नॉर्मल सांस नाक से लेनी शुरू कर देंगे। फिर आपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करना, सांस को रोकना नहीं। दिमाग आपका बहुत खाली हो चुका होगा, आप थक भी चुके होंगे, तो आपने आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। और आपने उस बेस्ट मोमेंट को याद करना है जो आपका इकट्ठे गुजरा था, लेकिन आपने उसको रीलिव करना है। मैं 2 लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इनको देखें ताकि आपको रीलिव का आइडिया भी क्लियर हो जाए और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे बड़ा आइडिया वो आपका जहन में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपने ख्याल से, अपने दिमाग से आप हर चीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, कोठी, रिलेशनशिप्स, पैसा, जो भी चीज हो, ठीक है। तो जिस वक्त आप ये करेंगे, उसके बाद आपने सांस की एक्सरसाइज के बाद आपने नॉर्मल सांस लेनी शुरू कर देनी अपनी नाक से, मुंह से नहीं। और आपने अपने बेस्ट जो मोमेंट आपका उसके साथ गुजरा था, वो किसी सिनेमा में था, मैं पहले इस एक वीडियो में ये बता चुका हूं, उसमें मैं एंकर थॉट्स के बारे में बात कर चुका हूं। उसको आपने सोचना शुरू कर देना और बिल्कुल उसमें डीपली आपने खो जाना। और जब आप उसमें डीपली खो जाएंगे तो सपोज आप जब डिनर पे गए थे तो आपको वो कुर्सी भी याद आएगी, उसका कलर भी याद आएगा, आपकी थॉट्स, आपकी सोच एक्सपैंड होती जाएगी, आपको वो माहौल भी याद आएगा, आपको वहां की लाइटें भी याद आएंगी, आपको उसका मुस्कुराना भी याद आएगा, आप आपको उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ बड़ा अट्रैक्टिवली याद आएगा, फील होगा, आपको फील करना है आपने उसको। जब आप वो फील कर ले और आपके बिल्कुल आप उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसको सामने लाके फिर उसको कहें कि यू लव मी एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। ये जुमला 6 से 7 दफा अच्छी तरह दोहराएं। उसके बाद अपनी आंखें खोल लें एंड लेट इट गो। आपने उसके बाद इस प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना कि मैंने ये किया था, इसका कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। लेट इट गो, उसको आजाद छोड़ दें, उसको होने के लिए आजाद छोड़ दें, ठीक है। अब ये जब आप कर लेंगे तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें, इंसान जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि इंसान जिंदगी में वही कुछ पाता है, वही कुछ उसको मिलता है और वही कुछ उसके साथ होता है जो उसकी सोच होती है, जो वो सोचता है। वैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, छोटे छोटे, हमारे दिमाग की थिंकिंग की स्पीड लाइट से भी ज्यादा ना, लेकिन वो ख्याल जिसके बारे में वो सोचता रहता है, वो फिर उसके साथ जिंदगी में उसी तरह होने लग जाता है। हमारी जिंदगी, हमारा वजूद और एक सामने लगा हुआ शीशा, आपके फ्रंट के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, तो उसी तरह है कि जो आपकी थॉट्स आ रही हैं वो शीशे में उसी तरह वो आपके साथ लाइफ में वो प्रोजेक्ट होगा आपके ऊपर। ये मैं जो वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो पे टॉपिक डिस्कस हो चुका है, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख के उसको देख लें, ताकि कोई आइडिया क्लियर नहीं तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो आप अपने इस इतने बड़े जहन, जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है और जिसके जरिए लोगों के कत्ल करवा सकते हैं, और जिसके जरिए दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। ये ब्लूटूथ कोई चीज नहीं है। मोबाइल से आज हम ब्लूटूथ दबाते हैं, बंदा अमेरिका में बैठा होता है, पिक्चर उसके पास चली जाती है। इस दिमाग से बड़ा अल्लाह ताला ने ट्रांसमीटर कोई नहीं है, इससे ज्यादा पावरफुल ट्रांसमीटर कोई नहीं है। जिन लोगों को इस सीक्रेट का पता था वो दुनिया में कामयाब हो गए, वो बिलियनर हो गए, वो मिलियनर हो गए।
और जो इसको नहीं समझ सके वो सारी जिंदगी अपने ख्यालात में ही डूब के स्ट्रगल करते रहे। अच्छा, अब तीसरी चीज ये है कि आपने अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके और सोते हुए और जब भी आपको वक्त मिले आपने ये जुमले दोहराने हैं कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, मैं सबसे ज्यादा कीमती हूं, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम केपेबल, और मैं सब कुछ हूं। ठीक है, मैं केपेबल हूं, आई एम हैंडसम, आई एम अट्रैक्टिव, आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, और मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने इरादे में कभी भी नाकाम नहीं होऊंगा, मैं अपने इरादे में कामयाब हो रहा हूं, मैं जिंदगी में कामयाब हो रहा हूं। ठीक है, और मैं खुश हो रहा हूं। ये जुमले आप दोहराएंगे कंसेक्यूटिवली। वो मेरे लिए रो रही है, वो मेरे लिए बेचैन हो रही है, मैं बहुत खुश हूं, वो बेचैन हो रही है। अब बात तो आप कहेंगे बात तो उल्टी है, बेचैन तो मैं हो रहा हूं, ठीक है, वो तो खुश है। नहीं, यही पॉइंट है, यही सीक्रेट है। आपने अपने माइंड को डिसीव करना है। कैंसर के पेशेंट ठीक होते हैं इससे। आपने अपने माइंड को डिसीव करना है। अगर उसको वापस लाना है तो माइंड को डिसीव करना है कि वो रो रही है, मैं नहीं रो रहा। ये कैसे पॉसिबल होगा? इन एक्सरसाइजेस से, और उसके बाद अपने आप को बार बार कहने से। इंसान का दिमाग जो है वो सजेशन को, हिप्नोसिस में जब मरीज को सजेशंस दी जाती है तो वो सो जाता है बड़ी गहरी नींद। इंसान का दिमाग सजेशंस को हमेशा कबूल करता है और उनको एक्टिवली उन पे अमल करता है। जब आप बार बार अपने आप को ये जुमले डेली कहेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैंने एग्जांपल दे दिया, तो आपकी विल पावर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी में, और आप उसको लिए रोना छोड़ देंगे और आप मजबूत इंसान बन जाएंगे और आपकी वैल्यू अपने आगे बढ़ जाएगी। आप एक हीरा बन जाएंगे। यू आर अ डायमंड। आप कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और अगर आप अपने आप को समझते रहेंगे कि मैं एक गिरा हुआ शख्स, उसने मुझे छोड़ दिया, आप रोएंगे, आप अपने बाजुओं पे कट लगाएंगे और आप उसको याद कर करके तड़पेंगे, तो वो जो अक्स है, जो शीशा है, जो यूनिवर्स है, द यूनिवर्स जो कायनात है, वो आपको इन रिटर्न वही कुछ देगी। वो शख्स आपसे और ज्यादा दूर होगा, वो शख्स आपसे और ज्यादा नफरत करेगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये है सीक्रेट वे कि इसको आपने कैसे करना है। आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई भी हो, मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये जो हमारा चैनल है, इसको हमने इसीलिए बनाया है कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके मुताबिक तरीकेकार बता दूंगा हाउ टू डू इट। लेकिन मैंने ये जो स्टेप्स बताए हैं, ये मैंने बहुत ज्यादा आपको क्लियरली बता दिए हैं। ठीक है जी, बड़े इजी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या कहते हैं, आपने करना है सांस की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको हम हफ्से दम कहते हैं। उसके बाद मेडिटेशन, आपके बेस्ट मोमेंट्स कि वो प्रेजेंट में आपने उनको रीलिव करना है, यानी कि आपने दोबारा महसूस करना है कि वो हो रहा है, और फिर आपने उसको ऑर्डर देना है आफ्टर 15-20 मिनट्स के तुम मेरे बगैर नहीं रह रहे, तुम मेरे बगैर रो रहे हो। तो ये नहीं कहना तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती, कहना तुम मेरे बगैर रह सक नहीं रही, तुम मेरे बगैर रो रही हो, तुम मेरे बगैर तड़प रही हो। ये नहीं कहना तुम मेरे बगैर तड़पोगी। पर फ्यूचर में नहीं जाना, ना पास्ट में जाना, प्रेजेंट में जाना। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसके बाद मेन चीज, उसको सोचना नहीं है बाद में बार बार कि मैंने वो किया था हुआ कुछ नहीं, मैंने किया था हुआ कुछ नहीं। फिर यू हैव टू लेट इट गो, उसको होने दे। फिर कायनात उसको तख्लीक कर देगी आपके लिए, कायनात उसको बना देगी आपके लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको ला देगा आपके लिए। हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी चीज, अपने आप को बार बार कहना कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, मैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बेस्ट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लोगों को मेरी जरूरत है, मेरी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। ये जुमले बार बार अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके और सोते वक्त अपने आप से कहें। 2 हफ्ते 3 हफ्ते, वो शख्स जिस टाइम
آپ یہ کریں گے, آپ کی تھاٹس مضبوطی پکڑیں گے, لیکن یاد نہیں کرنا بار بار کہ وہ میں نے کیا تھا, ہوا نہیں, پھر کچھ نہیں ہوئے گا. لیٹ اٹ گو. آپ دیکھیں گے کیسے کائنات تخلیق کرتی ہے آپ کے سب کچھ واپس, وہی ریلیشن شپ واپس, وہی محبت واپس, وہی پیار واپس, آپ کی رسپیکٹ واپس. آپ رسپیکٹیبل تھے نا, آپ کو استعمال کرنے والی چیز تو نہیں تھے, یو ور رسپیکٹیبل. دیکھیں کائنات آپ کو کیسے واپس کرتی ہے آپ کی سب چیزیں. تھینک یو فار واچنگ. اینی کوشچنز, اینی کمنٹس, پلیز آسک می ان دا کمنٹس اینی کوشچنز. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور پلیز ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.